सर आप ऐसा करो, वो वीडियो ना अपनी ऑफ कर दो, उससे डाटा खत्म, मतलब नेट इशू रहेंगे। आप अपना जो कैमरा ऑफ कर दो। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ अच्छा, आपको वीडियो की आवाज आ रही थी जब मैं उसकी ऑडियो चलाई थी? हाँ सर पहले तो आ रही थी, अभी हाँ, तो मैं नहीं आई दोबारा, लास्ट टाइम। अब तो मैंने बंद की हुई है। मेरे जो को पहले पहले ये वीडियो बताओ, आई। अब आप मेरे को बताओगे कि आपको जी ऑडियो सर। सही सुन रही है? Have a chance to test them out with a quiz. हाँ First, हाँ you'll जी see an सर, बिल्कुल image सही। and hear चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू हम लिसनिंग के बेसिक्स देखेंगे। ठीक है सर, ठीक। a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you तो आपको क्या होगा, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, फोटो, उसके बेसिस पे जी आपको एक सर। कहते हैं डायलॉग सुनना है छोटा सा, और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, उसका आंसर देना। ठीक है सर। चलो एक सेकंड। Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your English listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? सर पहला आ गया। A man is looking for a birthday present for his wife at a jewelry shop. Which necklace is he going to buy? तो एक आदमी है जो अपनी वाइफ के लिए नेकलेस ढूंढ रहा है। अब आपने ये सारा जी डायलॉग सर। सुन के ना, सारी बातचीत सुन के आपने मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा नेकलेस वो खरीदने वाला है। अब मैं डायलॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। May I help you? I'm looking for a birthday present for my wife. What do you recommend? Well, what about this necklace? It looks a little long. What about these over here? We have one with a flower pendant and another one with a heart. I'm looking for something a bit more sophisticated. How much is this pearl necklace over here? It's $5,000. That's too expensive. Okay, I'll take the first one. Sure thing. Here you are. हाँ जी सर, बताओ क्या, कौन सा खरीदने वाला है वो? सर ये सबसे पहले वाला सर, चलो फर्स्ट देखते वन। हैं, आंसर देखते हो। जी। Which necklace is he going to buy? A man is looking for a birthday present for his wife at a jewelry shop. Which necklace is he going to buy? May I help you? I'm looking for a birthday present for my wife. What do you recommend? Well, what about this necklace? It looks a little long. What about these over here? We have one with a flower pendant and another one with a heart. I'm looking for something a bit more sophisticated. How much is this pearl necklace over here? It's $5,000. That's too expensive. Okay, I'll take the first one. Sure thing. Here you are. तो सर आपका आंसर ठीक था, पहला ही था, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। A man and a woman are talking about printers in the office. Where is the old printer? तो अब फिर दो बंदों की बातचीत सुन के आपने बताना है कि ओल्ड प्रिंटर कहाँ है, पुराने वाला, ठीक है। ठीक है सर। स्टार्ट। Where should we put the new printer? I think we should put it where the old printer अच्छा is. सॉरी, मैं चीज बताना भूल गया, सॉरी। जब भी जैसे जब आईएलटीएस के पेपर में भी मैप्स आते हैं ना, तो जी सर। आपको क्या करना होता है, मतलब ये मेरी सलाह है कि आप पूरी पिक्चर ना एक बार देख लो, कि जैसे ये टेबल है, इस पे प्रिंटर पड़ा है, ठीक है सर। ये टेबल है, ठीक है इस सर। पे ये टेबल है, इस पे प्रिंटर पड़ा है, इसके पास एक दरवाजा भी है, ये देखो। ठीक है सर। ये प्रिंटर है, टेबल है, नंबर 4। ये भी एक टेबल है, इस पे जी। प्रिंटर है, यहाँ दरवाजा नहीं है, ये देखो यहाँ पे खिड़की सी बनी हुई है सर। हाँ जी, ठीक है सर। टेबल टेबल चेयर। चलो अब सुनो फिर। is now. But the old one.
It's 5,000. Here you are. A man and a woman are talking about printers in the office. Where is the old printer? Where should we put the new printer? I think we should put it where the old printer is now. But the old one still works. We're going to keep using it. Okay, so we can't put the new one there. It's too bad. It would be nice to have the new one in the bookshelf next to the door, but there's only room for one printer there. Okay then, I think we should put it on the other side of the room. Right. How about next to the window? That sounds good. तो सर क्या आंसर है? सर एक्चुअली ना आप दोबारा से सही से नहीं ये समझ पाया सर मैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा प्ले करता हूँ, नहीं समझ लगता तो फिर मैं कराता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर बिल्कुल। The office. Where is the old printer? Where should we put the new printer? I think we should put it where the old printer is now. But the old one still works. We're going to keep using it. Okay, so we can't put the new one there. It's too bad. It would be nice to have the new one in the bookshelf next to the door, but there's only room for one printer there. Okay then, I think we should put it on the other side of the room. Right. How about next to the window? That sounds good. हाँ जी सर। सर ये फर्स्ट वाला ये विंडो वाले पास वाला बता रहे थे। बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको फिर भी थोड़ी ना, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन तो मैं शुरू से समझा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है सर। Can't put the new one there. The office. Where is the old printer? Where should we put the new printer? कहता where should we put the new printer, नया प्रिंटर कहाँ रखें? I think we should put it where the old printer is now. कहती वहां रख दो नए प्रिंटर को जहां अभी ओल्ड प्रिंटर पड़ा हुआ है। ठीक है सर। But the old one still works. We're going But the old one still works, कहता पुराना भी तो चल रहा है। to keep using it. We are going to keep using it, हम इसको यूज करने वाले हैं जो ओल्ड वाले को। Okay, so we can't put the new one there. कहती हाँ चलो ठीक है, तो हम नया वाला वहां नहीं रख सकते। It's too bad. It would be nice to have the new one in the bookshelf next कहता ये चलो बात तो ऐसे खराब ही है, हम वहां नहीं रख सकते। ये अच्छा होता to the door. कि हम वो प्रिंटर एक बुक शेल्फ पे रख पाते, जो कि बुक शेल्फ कहाँ है? नेक्स्ट टू द डोर। तो पूरी फोटो में डोर था यहाँ पे। जी सर। इसके जो कहते साथ में हम प्रिंटर नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें नया प्रिंटर नहीं रखते, यहाँ पहले एक प्रिंटर पड़ा हुआ बुक शेल्फ पे। जी सर। But there's only room for one printer there. Okay then, I think अब देखो यहाँ पे उसने कहा ना देयर इज रूम, रूम मतलब यहाँ कमरा नहीं है, रूम का मतलब एक होता है जगह। तो कहता उस बुक शेल्फ पे एक ही प्रिंटर की जगह। ठीक है सर। we should put it on the other side of the room. तो कहती हम फिर ऐसा करते हैं, दूसरी साइड पे रख देते हैं, रूम की दूसरी साइड। अगर ये पहली साइड है तो अदर साइड कौन सी होगी? ये वाली। जी सर। Right. How about next to the window? That sounds good. तो कहता विंडो के नेक्स्ट रख दो। कहती ठीक है, तो विंडो ये है, उसके नेक्स्ट क्या है? ये। तो अभी अपना क्वेश्चन था Where is the old printer? उसने पूछा पुराना प्रिंटर कहाँ है। विंडो के पास तो सर नया रखा है ना, नया रखा है, तो वन आंसर नहीं, आंसर है 2। ठीक है सर। ठीक। क्योंकि कहानी कैसे शुरू हुई थी, वो कहता कि हम नया प्रिंटर कहाँ रखे। कहती ऐसा करो कि कहते जो दरवाजे के पास ओल्ड प्रिंटर है उसको हटा के नया रख दो। कहता ऐसे कैसे हटा दूं, उसको भी तो यूज करना है। कहती हाँ बात तो ठीक है। कहता लेकिन हाँ अच्छा होता कि अगर हम नया प्रिंटर दरवाजे के पास रख पाते। चलो अब नहीं रख सकते तो हम ऐसा करते हैं, उसको रूम की अदर साइड पे रख देते हैं। तो कहता हाँ विंडो के पास रख देते हैं, सही है। तो नया प्रिंटर 1 पे चला गया विंडो के पास, लेकिन पुराना जिसने जगह घेरी हुई थी वो कहाँ है? 2 पे। 2 पे। ठीक है सर। आंसर 2 है। सुनो ठीक है।
A man and a woman are talking about printers in the office. Where is the old printer? Where should we put the new printer? I think we should put it where the old printer is now. But the old one still works. We're going to keep using it. Okay, so we can't put the new one there. It's too bad. It would be nice to have the new one in the bookshelf next to the door, but there's only room for one printer there. Okay then, I think उस ऐड आ गई तो यहीं पे रुक, मैं भी आती we should put it on the other side of the थोड़ा room. सा पीछे कर दो तो We're going to keep using it. Okay, so we can't put the new one there. It's too bad. It would be nice to have the new one in the bookshelf next to the door, but there's only room for one printer there. Okay then, I think we should put it on the other side of the room. Right. How about next to the window? That sounds good. ठीक है सर समझ गए जी सर जी। चलो ये लास्ट है आज की ये करते हैं Man is talking with his wife on the phone. What's he going to buy? तो अगेन एक मैन और वाइफ की उसकी वाइफ की बात है अब आपने बताना इन चारों फोटोज में से कौन सा सामान वो खरीदने वाला है सुनो ठीक है। Hey, अच्छा जो मैंने बोला था पहले भी कि किसी भी पिक्चर को या मैप को करने से पहले उसको सारा देख लो तो यहाँ पे क्या है ब्रेड है बॉटल है मिल्क जी है ब्रेड बॉटल मिल्क बटर ब्रेड ठीक है। मिल्क बटर ब्रेड और heading home now. सॉरी ब्रेड और मिल्क अच्छा ठीक है। एक तो होता है ब्रेड के पीसेस जब ये ब्रेड आपस में जुड़ी होती है सर इसको क्या बोलते हैं ना सर पता नहीं तो। मैं बताता हूँ इसको कहते हैं लोफ ठीक है। LOAF लॉफ और लॉफ को जो ठीक है काटते हैं तो फिर वो क्या निकलते हैं स्लाइसेस ब्रेड के स्लाइसेस ठीक है सर। अच्छा ये दूध जिस पैकेट में है इस पैकेट को क्या कहते हैं इसको कहते ना हैं सर। कार्टन CARTON CARTON कार्टन अब ध्यान से सुनो ठीक है सर। चलो सर मैं डायलॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है ठीक है सर। Hey, heading home now. Okay, could you buy something on the way home? Sure. What do you want me to get? We need some milk and bread for tomorrow's breakfast. Milk and bread. Got it. How many cartons of milk? One should be fine. Okay. Anything else? 1 second. Let me check if we have butter. Okay, we've got some. All right. Do we have any beer left? Yes, we still have a bottle here. Okay. So we don't need to buy any right now. Right, I think we're good. Thank you. तो सर क्या आंसर बनेगा सर यही है ब्रेड बॉटल मिल्क बटर। नहीं इनमें से कौन सी फोटो वाला सामान वो खरीदने वाला है फिर ये सर ये First- इसमें काउंटिंग तो नहीं समझ आया था दोबारा लगा दूं नहीं सर ये सेकंड जैसे- वाली नहीं है सर ये वाली जिसपे कर्सर है इससे नेक्स्ट सर राइट में ये से। वाली ये हाँ ये वाली सर जी सर। एक सेकंड देखते हैं, मुझे लग रहा है गलत है आपका आंसर दोबारा सुनो जी जी। What's he going to buy? Hey, heading home now. Okay, could you buy something on the way home? Sure. What do you want me to get? We need some milk and bread for tomorrow's breakfast. Milk and bread. Got it. How many? तो कहता मिल्क और मिल्क एंड ब्रेड गॉट इट ये मैं ले आऊंगा ठीक है ठीक है सर। और अगर देखा भी जाए हर फोटो में मिल्क और ब्रेड तो है ही है सर मतलब जी वो तो सर। आना ही है ना चलो जी, आगे जी। देखो How many cartons of milk? हाउ मेनी One should be fine. एक चलेगा लेकिन है भी एक ही हर फोटो में कार्टन तो जी Okay. Anything else? 1 second. Let me check if we have butter. Okay, we've got some. कहती मुझे देख लेने दे घर पे बटर है कि नहीं है फिर आगे कहती वी हैव गॉट ठीक है। सम घर पे पहले ही है
अगर घर पे पहले तो फिर मक्खन नहीं खरीदने वाला। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। All right. Do we have any beer left? तो पूछता बियर पड़ी हुई है, देखो क्या कहती है। Yes, we still have a bottle here. Okay. So we don't need to buy any right now. Right, I think we're good. Thank you. तो वो कहती कि घर पे बियर है, तो फिर वो कहता और खरीदने की मतलब जरूरत नहीं है, कहती हाँ नहीं जरूरत ठीक नहीं है है। सर, तो फिर वो ना तो बटर खरीद रहा है ना क्या बियर खरीद रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, ये बिल्कुल। वाला। हाँ बिल्कुल सर, ये है आपने देखो सही। What's he going to buy? A man is talking with his wife on the phone. What's he going to buy? Hey, heading home now. Okay. Could you buy something on the way home? Sure. What do you want me to get? We need some milk and bread for tomorrow's breakfast. Milk and bread. Got it. How many cartons of milk? One should be fine. Okay. Anything else? 1 second. Let me check if we have butter. Okay, we've got some. All right. Do we have any beer left? Yes, we still have a bottle here. Okay. So we don't need to buy any right now. Right, I think we're good. Thank you. समझ गए सर। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अच्छा, ये आपकी जो अभी क्लास चल रही ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो मतलब अगर आपने जब ये क्लास खत्म होएगी ना, तो उसके आधे को घंटे बाद इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके क्लासरूम में। क्लासरूम में देखना एक सेक्शन ठीक होगा रिकॉर्डिंग्स, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, पूरा जितना हमने पढ़ा ना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो ये तो हुआ अपना लिसनिंग का पार्ट। अभी मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर उसके बाद करते हैं हम वर्ड्स करेंगे। ठीक है आप कह रहे थे ना वो डिफिकल्टी आती। ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको देखने की जरूरत, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ जी, चलो देखो, ये जो जितने अब ये वर्ड्स देखते हैं, शुड, ought to, must, have to, can, is, am, are, able to, may। क्या आप इनको, आपको इन सब के मतलब पता है सर? नहीं सर, मतलब तो नहीं पता है सर के। ठीक है, किसी एक का भी पता हो, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ। सर ये मुझे सिर्फ इसमें ये पता, इज एम आर भी, इसका भी है, इज में तो चलो एम यानी मैं, आर भी है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लिखने में जी। टाइम वेस्ट ना करना, मैं कह रहा हूँ कि आधे घंटे में क्लास अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यहीं से दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, नहीं नहीं वेस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड और ought to की सर। देखो जी सर। एक पहली तो बात, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों क्या है, दोनों का मतलब सेम है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, करना चाहिए, ठीक करना है सर, चाहिए। दोनों का मतलब क्या है, करना चाहिए। करना जैसे चाहिए सर। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, किसी को कहता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यू शुड शुड स्टडी। रीडिंग स्टडी, ठीक है सर। मैं ये भी कह सकता हूँ, यू ought टू स्टडी। ठीक है
मैं किसी को कहता हूँ कि तुम्हें गाना गाना चाहिए, यू ठीक है सर। शुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है सर। उसको मैं एक और चीज कह सकता हूँ कि यू ought टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है सर। अब आप मेरे को 2 सेंटेंसेस बना के बताओगे, एक में आप यूज करोगे शुड, एक में यूज करोगे ought टू, और आप मुझे वो चैट के थ्रू भेज दोगे। चैट दिख रही ना सब? जी। पहले तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, खराब मत बनाना। 2 सेंटेंसेस बनाओ, एक में शुड लगा देना, एक में ought टू। ठीक है सर। मैं आगे का लिख रहा हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप अपने सेंटेंस बनाना। ठीक है सर। हाँ जी सर, बना लिए? हाँ सर, एक सेकंड बस सर। कोई बात नहीं। तो देखो एक सेकंड। पहले में तो कोई भी गलती नहीं है, दूसरा देख रहा हूँ, दूसरे को ठीक कर रहा हूँ। चिल्ड्रन ought टू डू होमवर्क, ये ठीक कैसे लिखेंगे मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर। आपकी पहली गलती थी कि आपने डू नहीं लिखा था, और दूसरी गलती थी होमवर्क एक वर्ड होता है, आपने होम और वर्क ठीक अलग है लिखा सर। था ना। हाँ जी सर। चिल्ड्रन ought टू डू होमवर्क। जी सर। क्लियर सर? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद देखो, मस्ट या फिर हैव टू। अब जैसे शुड और ought टू सेम था, वैसे मस्ट और हैव ठीक है टू सर। सेम है। ठीक है सर? इन दोनों का मतलब क्या होता है? ठीक है सर। करना पड़ेगा या फिर करना पड़ता है। जैसे
तुझे पढ़ना पड़ेगा ठीक या है। तुझे पढ़ना पड़ता है, यू मस्ट स्टडी, यू हैव टू स्टडी, या फिर मुझे गाना ठीक है पड़ता सर। है या फिर मुझे गाना ही पड़ेगा, आई मस्ट सिंग, आई हैव टू सिंग। ठीक है। ठीक है सर। अब आप फिर दो बनाओगे, मतलब सेम मत यूज करना होमवर्क और बाद वगैरह, एक में मस्ट यूज करना और एक में हैव टू। ठीक है सर। ठीक है सर। आज मैं नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, देखना सर। सर एक तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपका सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। ठीक है सर। आयल्स मार्क्स काटता है इस चीज के, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो आयल्स ही है ना, तो फुल स्टॉप लगाना नहीं हाँ जी भूलना। सर, बिल्कुल। ठीक है सर। ये बढ़िया है, बस इनमें थोड़ी सी गलती मैं ठीक कर देता हूँ। जी सर। आपने लिखा आई मस्ट ड्राइव कार। अब क्योंकि कार एक ऐसी चीज है जिसको हम गिन सकते हैं ना, और वो एक है, अभी के जी लिए सर। सिर्फ इतना बता रहा हूँ, कार जी। हम गिन सकते हैं, एक कार, दो कार, पांच कार। और क्योंकि अभी एक की बात की है तो आपने क्या लगाना था, ए।
लास्ट में लगाना था फुल स्टॉप। ठीक है आई सर, मस्ट ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलानी ठीक है पड़ती है या चलानी चाहिए या चलानी पड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है सर, अब ठीक कुछ है इसी सर। तरह का एरर आपके दूसरे में, आप मेरे को उसको ठीक करके बताओगे? एक ए तो हाउस वाले सर। बिल्कुल सर, एक तो वही मैंने पहले बताया था, फुल स्टॉप लगाना है, और यू हैव टू परचेज अ हाउस। जी क्लियर है सर? विनीत सर क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सर, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, मैंने आज के लिए मे काट दिया, मैं क्या आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी हम लास्ट करेंगे कैन वाला। कैन या फिर इज एम आर ठीक है एबल सर, टू, इन सब का मतलब सेम होता है। अब इनका सबका ठीक है मतलब सर, है क्या है, कर सकता, कर सकता हूं, कर सकता हूं, ऐसे समझ ठीक है, लो, या कर सकता है। कैन तो ठीक हर है एक के सर, आगे लग जाता है, ही शी इट, राम श्याम, किसी के भी आगे। लेकिन जो ये एबल ठीक है टू है सर, ना, इसके आगे जो लगना वो बदलता है। जैसे अगर ही शी इट है, या फिर कोई नाम है, नाम सिंगुलर में है, एक बंदे का है, तब इज लगता है। ठीक जैसे ही इज, शी ठीक इज, है, इट इज, नाम आपका ले लेते हैं, विनीत इज, सो विनीत इज एबल टू। जो ठीक है, एम है वो लगता है सिर्फ ठीक है आई के सर, आगे। उसी तरह ठीक है जो सर, आर खुद है खुद के वो, लिए सर। हाँ, और जो आर है वो लगता है या तो यू के आगे, या फिर अगर कोई चीज प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक। एक से ज्यादा, ठीक है प्लूरल सर। होता है, जैसे सिंगल, सिंगल मतलब क्या होता है सर? हाँ सिंगल सर, ये सिंगुलर, ये सिंगल का सिंगल मतलब होता है एक ना ही वन। चीज होगी ना सर। हाँ, तो वो बन गया ना सिंगुलर। हाँ जी, वन बिल्कुल। प्लूरल का मतलब क्या जी होता है, एक से जी, ज्यादा। तो अगर तो यू है, एक से यहाँ ज्यादा सर, कहते बिल्कुल। अ, एक से ज्यादा, तब आर आता है, यू आर एबल टू। ठीक, तो अब ठीक है जैसे सर, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। ही इज एबल टू डांस, वह नाच सकता है। ठीक, ठीक है सर? ठीक है सर। अब बनाओ दो, एक में एबल टू वाला, तो सर एक में एबल कैन। टू, हाँ जी, जी जी सर। ये सर एबल टू का नहीं समझ। अच्छा, कैन का मतलब क्या है, कर सकता है, मतलब कर सकता, ठीक है हूं, ये सब। जी सर, ठीक है, एबल टू का ठीक है मतलब सर, भी वही होता है, बस इन दोनों में फर्क ये है कि कैन तो किसी के आगे भी लगा देते हैं, राम कैन, श्याम कैन, दे कैन, ही कैन, आई कैन, ये हर एक के आगे चला जाता है। ठीक, एबल टू को यूज करने के अलग अलग ठीक तरीके है हैं। सर। अब एबल टू के आगे जी सर, इज कब आना है, एम कब आना है, आर कब आना है, वो बताया था। और जी मतलब सेम है, जो कैन का मतलब है वही इज एम आर एबल टू का मैं, मतलब है। जी जी। हम्म। तो एबल टू सर नहीं यूज कि कहाँ पे होगा, नहीं मतलब तो सेम है सर। हाँ हाँ, तो ऐसे तो शुड और ought एबल to का टू ही मतलब सेम था ना। कंफ्यूज। चलो मैं एक दोबारा लिखता हूँ, हाँ रुको। जी, जी जी, जी जी। इनके मतलब क्या थे, आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो, ही कैन स्लीप, वह सो सकता है,
विनीत कैन स्लीप, विनीत सो सकता है। इंडियंस कैन स्लीप, इंडियंस सो सकते हैं। सबके मतलब आपको समझ आ रहे हैं? जी सर। जी अब सर। इनको लिखने का एक और तरीका है, जैसे शुड की जगह ought to लग जाता है, मस्ट की जगह हैव टू लग जाता है, उसी तरह कैन के लिए भी एक और है। अब जैसे मैंने लिखा ना आई कैन स्लीप, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था आई के आगे क्या लगता है, एम। आंसर बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि आई एम एबल टू स्लीप। ठीक सर। अच्छा, यू के आगे क्या लगता है, हमने भी पढ़ा था, आर। अब यू कैन स्लीप है तो हम ये भी लिख सकते आर हैं, सर। यू आर एबल टू स्लीप। टू स्लीप। यू आर एबल टू। अच्छा, ही के आगे क्या लगता है सर, अभी पढ़ा था, इज। ये देखो, ही। हाँ जी सर। ही इज इज। सिंगल, बिल्कुल हाँ जी, सिंगल हाँ के जी। लिए सर। ही सॉरी, जी। ही इज एबल टू स्लीप। टू देखो, स्लीप। ठीक। ठीक। ही कैन स्लीप, ही और स्लीप वही रहे, बस कैन की जगह क्या आ गया, इज एबल टू। मतलब सेम है सर दोनों का। जी सर। सर ये अब विनीत हाँ जी, हाँ जी, कैन। मैं यही कहने लगा था कि ये आप करोगे दोनों, इन सर दोनों को एबल टू में चेंज करो। ठीक है सर। विनीत इज एबल टू स्लीप सर। बिल्कुल ठीक है सर। इंडियंस एक आर सेकंड, एक एबल सेकंड, एक टू सेकंड, स्लीप। लिखता हूँ। विनीत इज एबल टू जी जी। स्लीप, बिल्कुल ठीक है। आगे। जी। हम्म। इंडियंस हम्म, आर हम्म, एबल टू स्लीप। बिल्कुल ठीक, एबल टू स्लीप सर। बिल्कुल ठीक। अब हो गया क्लियर सर वो, ठीक। हाँ जी सर हो गया जो चलिए। वो एबल टू वाली कंफ्यूजन थी आपको ना। हाँ जी हाँ सर बिल्कुल। सर मेरे को यही नहीं आ रहा था ना भी एबल टू इज एम आर के साथ यूज करना है या अलग से था। इस हो गया सर उसके क्लियर। साथ ही, बस वही है कि वो जो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो देखना पड़ेगा। हाँ ये सर ठीक है सर ठीक है। ठीक है, मैं आपको फिर 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी सी स्पीकिंग कराता हूँ। ठीक है। चलो विनीत सर, अब मेरे को आप पहले बताओगे कि आपको बोलने के समय तकलीफ क्या आती जी है, सर। मतलब क्या तंगी आती है? सर बोलते समय वर्ड ही माइंड से निकल जाते हैं जी। वर्ड ये माइंड से थोड़ा निकल बहुत जाते भी हैं। जितना हम्म, सफल।
क्या होता है? जैसे लगता है धड़कन बढ़ रही है, जी एकदम से लगता है अनकंफर्टेबल सा फील होना शुरू हो जाता है ना। नहीं सर, धड़ हाँ जी, बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जो महसूस होता है। जो वर्ड्स भी है ना, जितनी हाँ भी हाँ थोड़ी हाँ, बहुत सर है माइंड में मैं समझ रहा वर्ड्स, हूँ समझ रहा हूँ। वो भी बस जैसे ब्लर हो ऐसा होता जाते है, हैं जी। ऐसा होता है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अम, एकदम से ना पहले तो हम क्या करते हैं, एक तो खराब से बॉडी जेस्चर बनाने शुरू कर देते हैं, हाथ हिलना शुरू, टांग हिलना शुरू, इधर शरीर कभी इधर कभी जी उधर सर, बिल्कुल। बोलते समय, है ना। और उसके साथ क्या होता है कि थोड़ा सा डर भी जी लग सर, रहा जी होता है, थोड़ा सा डर सा लगता है एक तो, और एक लगता है कि हमें कोई वर्ड ही नहीं आता दुनिया का। जी और फिर हाँ एक सर, टाइम पे हम क्या बिल्कुल कर जीरो देते हैं, माइंड हो जाता है वैसे। और एक टाइम पे हम क्या कर देते हैं, गिव अप, जी सर, है ना। चलो सबसे पहले बात करते बिल्कुल। हैं हाँ जी, बिल्कुल। आपकी। हाँ हाँ, मैं सबसे पहले बात करते हैं कि जो वो बॉडी का प्रॉब्लम है, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले तो जैसे बोलते हो ठीक वैसे ही बोलना, फिर मैं जो कहूंगा उसको फॉलो करना। एक सेकेंड। ठीक है सर। बोलो इस पे आंसर। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज वाइट। आपने इस पे ना 5 लाइन बोलनी सर। ठीक है सर। सर ये हाँ फिनिश हो करो करो जाता करो है करो, ये कोई वाइट कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बॉडी कांपनी शुरू हुई? सर इसी सर, ये ना बस जैसे आपने क्वेश्चन नहीं किया ना नहीं, रुको इसके रुको बारे रुको में, रुको बस सर, मेरे इससे को आगे अभी, माइंड से नहीं। अभी मैं बीमारी परख रहा हूँ सर, अभी रुक जाओ। अच्छा, अगर आपकी बॉडी इस टाइम पे नर्वस हो रही है ना, पहले तो बॉडी को कंट्रोल करो, पहले तो रिलैक्स हो। अगर टांगे हिल ठीक है रही है तो सर। पहले टांगे कहते हैं जी ठीक करो, और उनकी मूवमेंट रोको। पूरा शरीर हिल। उसके ठीक है हाँ, सर। पहले तो अच्छा, अगर पूरा शरीर हिल रहा है तो पहले बॉडी कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, बॉडी कंट्रोल। हाँ सर, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो बैठ गया बिल्कुल आराम अब से। बोलना जरा। अब कहते बोलते टाइम भी कहते बॉडी को हिलने नहीं देना, रिलैक्स्ड, और कहते नॉर्मल बॉडी के साथ आपने आंसर देना। अब बोलने की कोशिश करो जरा। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड। अच्छा सर, देखो मेरी बात सुनो कि जब ऑलमोस्ट। हम कहते हाँ रुको रुको, मैं एक चीज बताता जी हूँ सर। आपको। जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, और हमें जी एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो हमें वो जी क्वेश्चन ना बहुत छोटा मिलता है, व्हाट इज योर जी। फेवरेट कलर, है ना। तो मतलब हम इसके बारे में कुछ भी बोल ठीक है सकते हैं, सर। जैसे आपने बोला, जैसे मेरा फेवरेट कलर मैं बताता हूँ, मेरा फेवरेट कलर होगा आई थिंक ग्रीन। अभी जी सर। क्योंकि मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया आपका फेवरेट कलर कौन सा है, उसके आगे तो उसने मुझ पे छोड़ दिया कि उसके बारे में जो भी बोलना है बोल, क्योंकि बैंड स्क्रिप्टर्स आर्ट्स के कहते हैं डेवलप करना। ठीक। लेकिन क्वेश्चन क्या देते हैं, इतना सा, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो इसके आगे आप कुछ भी बोल सकते ठीक हो, है सर। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। एक सेकंड सर। ठीक है सर। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, मेरे पास ग्रीन कलर के कपड़े हैं, मैंने ये कपड़े यहाँ से लिए थे, ठीक है सर। और मैं कब कब ठीक है पहनता सर। हूँ। ये बोल ठीक है सकते हो। सर। उसके ये भी बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन ठीक। है, मुझे नहीं पता क्यों मेरा फेवरेट ये वो बन गया, हाँ बस पसंद है, इंटरनल सी ठीक है फीलिंग है। सर। ये भी बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट कलर ठीक है ग्रीन सर। है, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत ठीक। पसंद है। सॉरी। ठीक है सर। प्लांट्स क्यों जरूरी हैं, ये उसके ठीक है आगे सर। एक आधी लाइन उसकी बोल दी, कोई चक्कर नहीं। स्पीकिंग में क्या होता है, चाहे वो जनरली बात कर रहे हैं
चाहे वो आइल्स का पेपर है या कोई और पेपर है, क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन डेवलपमेंट मांगी होती है, जी तो डेवलपमेंट कहीं भी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जैसे सर। एक सेकेंड, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज योर मे बी फेवरेट फ्रूट। अभी मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, बस हम ये करेंगे कि हम इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे वो भी, ठीक है। कि जैसे सर आपका ठीक है फेवरेट कौन सा है? सर। माय फेवरेट तो ग्रेप्स है सर। ग्रेप्स। चलो, अब हम, अगर मैंने ये बोल दिया कि जी आई लव ग्रेप्स द मोस्ट, अब हम आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ग्रेप्स बहुत जूसी होते हैं, ये महंगे नहीं होते, जी और जी मार्केट से मिल जाते हैं। ऐसे 2-3 लाइनें बोल सकते हैं ना। जी। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं सर? ठीक है सर। कि अब आप बताओ और क्या बोल, और किस डायरेक्शन में जा सकते हैं? मार्केट से आसानी से मिल सकते हैं, और सर ये जैसे मोस्टली एक सेकंड, जैसे मैंने ये बोला टूस। कि, एक सेकंड सर, कि जैसे मैं इस डायरेक्शन में ले गया था कि ग्रेप्स आर जूसी, सॉरी, माय फेवरेट fruit is grapes, they are जी juicy, they are not very expensive, they are cheap actually, and we can buy from them, sorry, we can buy them from markets, simple। 3 लाइन का आंसर बन गया ना, बहुत होता है। जी उस तरह जी अब कुछ और डायरेक्शन बनाते हैं कि जी हम इसके जी बारे में और क्या बोल सकते थे। जी सर। सर ये जैसे मार्केट में 2 से 3 मंथ्स हम्म, कम उसमें कम रुपए बोलो में बोलो बोलो सर, खरीदा जा सकता है सर, कि जैसे। कितनी देर रहते हैं? और ऑफ सीजन में सर ये, हम्म, हाँ सर, वैसे तो नहीं, जो रेट है हो सकता है सर, सस्ते में तो ये 2 से 3 महीने ही खरीदे जा सकते हैं। तो चलो सर, कोई नहीं, और मैं ऑफ हमने सीजन कौन से में थोड़ा बेचने, इनका मतलब ऐसे ही। रेट बढ़। ठीक है जी। मतलब आप इस वाले आंसर में इनको महंगा कर देते, ये लोग एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें कौन सा रेट पूछना। जी जी ठीक है बात। जैसे अभी आंसर कैसा बन सकता था कि माय फेवरेट फ्रूट इज ग्रेप्स, दे आर अवेलेबल इन देयर सीजन एंड दे आर जी आल्सो अवेलेबल इन एंड दे आर आल्सो अवेलेबल ऑफ सीजन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय देम। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। जी चलो एक और देखते हैं, एक और डायरेक्शन बनाते हैं इसके लिए, और कैसे हम इस आंसर दे सकते थे। सर। वैसे कौन सा फ्रूट्स है जिसपे मान लो कि ज्यादा उससे लिखा जाए, जैसे ग्रीन कलर था अभी, इसमें तो चलो बहुत सी ग्रीन, बातें आ जाती हैं। नहीं नहीं, तो सर ग्रेप्स में बड़ी बातें बन जाएंगी, ठीक कोई भी फ्रूट चुन लो। है ग्रेप्स सर, दो तरह ठीक के है। होते हैं, 2 कलर्स के होते हैं। और कहते, आपको कौन सा ज्यादा जी सर। पसंद है, कि जैसे आप कह सकते हो को ब्लैक वाले ज्यादा पसंद है। और फिर आप ये बता जी सकते हो कि लास्ट टाइम कब खाए थे, फिर बन गया एक आंसर। देखो आंसर बनाने के कितने जी तरीके हैं सर। सर। जी माय फेवरेट फ्रूट इज हाँ जी ग्रेप्स, सर, बिल्कुल। they are available in 2 colors, green and black. My favorite type is जी the सर। black one. The last time I had black grapes was at a wedding, बस। जी सर, यही तो नहीं, ये जो कहते हैं ना, जो एक बातें बनती है ना, बातें बनानी आती है, यही नहीं बनती सर ये। तो हम सर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैंने अभी आपको मैंने कौन सी स्पीकिंग लेनी शुरू कर दी है? मैं तो अभी बता रहा हूँ कि बातें, हम बातें तो बना रहे हैं अभी भी ना, है ना सर। हाँ हाँ सर, जैसे हाँ, ये बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल एक से इसी मान को, लेगी, एक बात से उसके 10 बात जैसे नहीं होती है जी। मैंने वो, अगर आपने वो जोश टॉक से मेरे को कांटेक्ट किया था, तो मैंने क्या बोला था कि आप क्या करते हो, टेस्ट के बाद टेस्ट दे के टेस्ट देने चले जाते हो, हमने करना क्या होता है तैयारी के बाद टेस्ट। तो ये तैयारी स्टेप बाय स्टेप। जी तो बिल्कुल अभी सर, बिल्कुल आपका सर। होमवर्क क्या है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने इसी तरह 3-3 पॉइंट्स बनाने जी हैं, सर। और हर पॉइंट में भी 3 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे ग्रेप्स ठीक जूसी, चीप मार्केट, ग्रेप्स सीजन ऑफ सीजन एक्सपेंसिव, ग्रेप्स टू ठीक। ब्लैक लास्ट टाइम। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आपने करना है ऐसे ही 3-3 जी टाइप्स सर। के 3-3 पॉइंट्स बनाने, दोनों के कल तक।
ठीक है सर। ये मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चंस, एक सेकंड सर। ठीक है। आपने सिर्फ इसका ये करना है कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी लेके, एक मूवी लेके 3 तरीके से मुझे बताना है कि 3-3 लाइंस कैसे बोल सकते हो। और सेम ही इसके लिए, हु इज योर फेवरेट पर्सन। ठीक है सर। ठीक है, एक तो ये करना है। एक जो हमने पिछला जितना भी किया वो वीडियो को देख के रिवाइज कर लेना बस। ठीक है सर। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है सर।